Good morning, students. Good morning, students. Today we have taken the fourth chapter in this video, and this chapter is written by Selma Lagerlof. The chapter is The Rat Trap, and before we discuss about this chapter, let's talk about the author Selma Lagerlof. Selma Lagerlof was born in 1858 and died in 1940. Was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages, and a universal theme runs through all of her stories. The theme is the belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. She means to she means by this theme is that in every human being, whether the person is too bad, there is essential goodness in that person, and that essential goodness can be brought out through understanding and love. If a person shows understanding and love towards that bad person, only then he is able to awaken the essential goodness in that bad person. This story is no exception to it. It is also carrying the same theme, and the story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore, which figure large in the history and legends of that country. Sweden is known for its rich mines of iron ore, and there are many legends about these mines in the history of Sweden, and the story is set amidst those mines. The story is told somewhat in the manner of a fairy tale. Fairy tale means here you will make use of imagination. Story is going to be very interesting. Now let's talk about the distinguishing feature of Selma Lagerlof. Selma Lagerlof was the first female writer to win the Nobel Prize in Literature in 1909, and the chapter talks is based on the theme as we have discussed earlier, and apart from it, the author has beautifully brought out human loneliness and the need to bond with others in this chapter. There are some expressions in this text. We'll talk about them one by one. The first is keep body and soul together. Keep body and soul together. It means to survive, survive, to survive in difficult circumstances. Second, plods along the road. Plods along the road means to walk slowly with heavy steps on the road. When one is tired or exhausted, so a person takes heavy steps on the path, eased his way. Next is eased his way to move comfortably, to move comfortably, or came in slowly and carefully. The other meaning is came in slowly and carefully. Next is things have gone downhill. It means things have deteriorated or things have worsened. Worsened.
worsened. Then next is hunger gleamed in his eyes. Hunger gleamed in his eyes. It means a person is so hungry that one can see his hunger through his eyes. Unwanted joy. Unwanted joy means unusual joy or pleasure. Unusual joy or pleasure. Nodded a haughty consent. Nodded a haughty consent. That means arrogantly agreed. Arrogantly agreed to something. Fallen into a line of thought. Fallen into a line of thought. Started thinking about something. Started thinking about something. So we have covered all the expressions. Now we will start or begin the chapter. Once upon a time, there was a man who went around selling small red tips of wire. Once upon a time means at one time there was a man who went around जो जाता था around इधर उधर selling small red tips of wire छोटे छोटे चुएदानियां बेचने के लिए जो तारों से बनी होती थी. He made them himself at odd moments. Odd moments here, free time. He made those small red traps himself at his free time. From the materials he got by begging in the stores or at the big farms. खाली समय में वह इनको खुद बनाया करता था उस मटेरियल से जिसको वो भीख मांगकर स्टोरों और बड़े बड़े फार्मों से भीख मांगकर लाया करता था उस मटेरियल से उनको बनाया करता था. बट इवन सो द बिजनेस वाज नॉट एस्पेशली प्रॉफिटेबल सो ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग. लेकिन उसके बावजूद भी उसका बिजनेस पर्याप्त मुनाफा देने वाला नहीं था. सो इसीलिए उसको ही हैड टू रिजोर्ट टू बोथ बेगिंग. He had to indulge, commit begging as well as petty thievery to keep body and soul together. उसे दोनों ही चीजें करनी पड़ती थी. भीख भी मांगनी पड़ती थी, begging भी करनी पड़ती थी, and petty thievery. He had to commit petty thievery. Petty thievery means here small acts of theft. छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी. To keep body and soul together. ये फिर एक्सप्रेशंस में आ चुका है पहले ही. To keep body and soul together. To survive in those difficult circumstances. Even so, his clothes were in rags. बावजूद इसके जो उसके कपड़े थे were in rags. वो चिथड़े थे. Rags. चिथड़े बन चुके थे. They were worn out. His cheeks were sunken. His cheeks were thrusted in. उसके जो गाल थे वो अंदर की तरफ धसके हुए थे. And hunger gleamed in his eyes. And one could see hunger in the red trap seller or the peddler's eyes. उसकी आंखों में भूख देखी जा सकती थी. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. No one can imagine. कोई कल्पना नहीं कर सकता कि कितना दुखी और lonely, monotonous है lonely और boring जीवन can appear to such a vagabond. ऐसे vagabond, vagabond means a person who is homeless. A person who is homeless, जो आवारा हो, घर रहित हो. इस तरह से आवारा व्यक्ति के लिए जीवन कितना दुखी और बोरिंग अथवा लोनली हो सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता. Who plods along the road, जो थके हारे रोड के साथ साथ चलता है. Left to his own meditations, और अपने ही विचारों में खोया रहता है. Left to his own meditations.
Means he keeps thinking. He is lost in his own thoughts. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन ये जो आदमी है had fallen into a line of thought. Suddenly started thinking of an idea which really seemed to him entertaining. अचानक वो एक विचार के बारे में सोचने लग गया जो वास्तव में उसे एंटरटेनिंग प्रतीत हुआ. मीन्स इट वॉज प्लेजरेबल फॉर हिम. ये उसे प्लेजर देने वाला था. He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole he had naturally been thinking of his rat traps. वह स्वाभाविक रूप से अपने चूहेदानियों के बारे में ही सोच रहा था कि तभी अचानक से he was struck by the idea. An idea suddenly came to his mind. अचानक उसके मन में एक विचार आया. विचार क्या था? That the whole world about him, कि ये जो सारा संसार है about him, उसके चारों ओर, surrounding him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, सारा संसार अपनी पूरी लैंड्स के साथ, जमीन के साथ, and seas, सागरों के साथ, इट्स सिटीज, इसके शहरों के साथ, एंड विलेजेस, इसके गांवों के साथ, वॉज नथिंग बट ए बिग रैट ट्रैप. ये कुछ नहीं बल्कि एक बिग रैट ट्रैप है, एक बड़ी चूहेदानी है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज. यह किसी दूसरे उद्देश्य के लिए कभी नहीं बनी थी. देन टू सेट, बजाय की टू सेट बेट्स फॉर पीपल, टू ऑफर टेम्पटेशंस फॉर पीपल, बजाय की लोगों को प्रलोभन देने के लिए बनी थी. एंड व्हाट वर दोज टेम्पटेशंस? इन द नेक्स्ट सेंटेंस इट हैज बीन क्लियर्ड. इट ऑफर riches and joys, shelter and food, heat and clothing, exactly as the rat trap offered cheese and pork. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, it closed in on him. यह जो वर्ल्ड है, इट ऑफर riches and joys, यह धन देता है, खुशी देता है, शेल्टर एंड फूड, रहने के लिए स्थान देता है, मीन्स आश्रय देता है, एंड फूड, भोजन देता है, हीट एंड क्लोथिंग, गर्मी देता है, और क्लॉथिंग, कपड़े देता है और मौसम में बचने के लिए. एग्जैक्टली एज द रेड टैप ऑफर चीज एंड पोर्क, ठीक वैसे ही जैसे एक चूहेदानी क्या देती है? चीज, पनीर देती है, पोर्क, मीट ऑफ पिग्स, सुअर का मांस देती है. एंड एज सून एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट, और जैसे ही कोई अपने आप को उस प्रलोभन में अपने आप को प्रलोभित होने देता है और उस प्रलोभन में उस प्रलोभन को छूना चाहता है. बेट मीन्स हियर द फूड दैट इज सेट टू ट्रैप एन एनिमल. जो फूड रखा गया है एनिमल को अटैक करने के लिए, टेम्प्ट करने के लिए, जैसे उस प्रलोभन को छूने की कोशिश करता है, इट क्लोज्ड इन ऑन हिम, तो यह उसके ऊपर बंद हो जाती है. And then everything came to an end, और फिर हर चीज खत्म हो जाती है. There is no riches, no joy, no shelter, no food, heat and clothing, nowhere these things are seen. The world had of course never been very kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. The world, ये जो संसार है, of course never been very kind to him, निश्चित रूप से यह उसके लिए अच्छा नहीं रहा है. यह उस रेड टेप सेलर के लिए अच्छा नहीं रहा है. So it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. इसलिए संसार के बारे में इस तरह से बुरा सोचने में उसे unwanted joy मिलता था. Unwanted joy means unusual pleasure मिलता था. एक असाधारण खुशी सी मिलती थी. अरे ये
मेरे लिए अच्छा नहीं बल्कि ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है. दिस वर्ल्ड इज नॉट गुड फॉर एनीबॉडी. इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज. यह उसके लिए एक फेवरेट एक्टिविटी बन गई, फेवरेट हॉबी बन गई, टू पास हिज टाइम, अपना समय बिताने के लिए. ड्यूरिंग मैनी ड्रियरी प्लॉडिंग्स, इसका प्रयोग वो अपनी कई ड्रियरी प्लॉडिंग्स, प्लॉडिंग्स मीन्स हेयर विजिट्स, जर्नीज, एंड ड्रियरी मीन्स हेयर बोरिंग एंड एग्जॉस्टेड, उन खुश्क यात्राओं में वो सोचता था इसके बारे में. टू थिंक ऑफ पीपल he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare. लोगों के बारे में सोचता था जिनके बारे में वो जिनके जिनके बारे में उसे मालूम था और जिन्होंने अपने आप को इस खतरनाक स्नेयर, इस फांद में, इस कैचिंग में फंसा लिया था. एंड ऑफ अदर्स, और दूसरों के बारे में हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, जो अब भी उस भोजन के चारों ओर मूव कर रहे थे, चक्कर लगा रहे थे. सर्कलिंग अराउंड द बेट, मूविंग इन सर्कल around that bait. One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. और एक डार्क इवनिंग, एक अंधेरी शाम के दौरान, एक अंधेरी रात के दौरान, जब वो रोड के साथ साथ जा रहा था, he caught sight of little grey cottage, तो उसे एक छोटी सी सुनहरे रंग की कॉटेज, झोपड़ी दिखाई पड़ी रोड के साथ में. And he knocked on the door to ask shelter for the night. उसने उसका दरवाजा खटखटाया ताकि उसे रात्रि के लिए, नाइट के लिए शेल्टर मिल जाए, ठहरने का स्थान मिल जाए. Nor was he refused, और उसे मना नहीं किया गया. He was given that permission. Instead of the shower faces which ordinarily met him, बजाय कि जो लोगों के शावर फेसेस, हॉस्टाइल फेसेस जो उसे अक्सर देखने को मिलते थे जब वो ऐसी परमिशन के लिए बोलता था, जो इस झोपड़ी का जो ओनर था, द ओनर ऑफ दिस कॉटेज, हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस. हु वाज एन ओल्ड मैन, जो बूढ़ा आदमी था, जिसकी पत्नी नहीं थी, जिसके बच्चे नहीं थे, वो खुश हो गया किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त करके जिसके साथ वो अपने अकेलेपन में बात कर सके. मीन्स हियर द ओनर ऑफ द कॉटेज सफर्ड फ्रॉम loneliness. Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper. और तुरंत ही उसने जो पोरिज, दलिया, जो दलिये का बर्तन था, वो स्टोव पर रख दिया, फायर पर रख दिया, गैस स्टोव पर रख दिया. एंड गेव हिम सपर, और उसे सपर मीन्स द लास्ट मील ऑफ द डे, मीन्स एट नाइट, लास्ट नाइट मील, और उसे रात्रि का भोजन खिलाया. Then he cut off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. और फिर he cut off means here cut such a big slice from his tobacco roll. अपनी जो तंबाकू की रोल थी उससे इतना बड़ा टुकड़ा काटा that it was enough both for the stranger's pipe and his own, जो कि उस अजनबी की पाइप के लिए भी, सिगार के लिए भी, और उसके खुद के सिगार के लिए भी पर्याप्त था. The amount was enough for the pipes of both. Finally he got out an old pack of cards and played Mayulis with his guest until bedtime. आखिरकार he got out an old pack of cards. He brought out an old pack of cards. उसने पुरानी ताशों की एक डिब्बी निकाली and played Mayulis with his guest until bedtime. और खेलने लगा. Mayulis here Mjolis, that it is pronounced as Mayulis. ये स्वीडन
स्वीडिश लैंग्वेज का वर्ड है। म्यूलिस मीन्स ए कार्ड गेम, और वो एक कार्ड गेम ताशों का खेल खेलने लगे अपने गेस्ट के साथ जब तक कि सोने का समय नहीं हो गया, until bed time. The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. और वो जो बूढ़ा आदमी था वो इतना ही जेनरस था, इतना ही उदार था, इतना ही लिबरल था अपने सीक्रेट्स के साथ। कॉन्फिडेंसेस है, इट मीन्स सीक्रेट्स, अपने सीक्रेट्स के साथ जितना कि वो अपने दलिए और टोबैको के साथ था। मीन्स he shared his secrets with that red tape seller. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter. मेहमान को ये भी बताया गया उस कोटेज ऑनर के द्वारा, उस ओल्ड मैन के द्वारा, कि वह अपने प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, अपने समृद्धि के दिनों में, अपने रिचेस के दिनों में क्या था, he his host had been a crofter. He was a small farmer. Crofter means a small farmer at Ramsjo Iron Works. Ramsjo Iron Works है, Ramsjo Iron Works में वो क्या था, एक किसान था, and had worked on the land, और वहाँ जमीन पर काम करता था, कार्य करता था। Now that he was no longer able to do day labor, क्योंकि अब वो दिन की मेहनत नहीं कर सकता था, it was his cow which supported him. अब उसकी गाय थी जो उसको सहारा देती थी, supported him. Yes, that bossy was extraordinary. यहाँ पे bossy वर्ड आया है, it represents cow. It refers to the cow owned by the cottage owner, the old man. हाँ, जो उसकी गाय थी was extraordinary, वो असाधारण थी, यूनिक थी। She could give milk for the creamery every day. वह उसे दूध देती थी। creamery, a factory, creamery means here a factory that produces paneer, butter and cheese, that produces butter and cheese, जो देती है, जो बनाती थी उसको लिए वो दूध देती थी एवरी डे। एंड लास्ट मंथ he had received all of 30 kroner in payment. और पिछले महीने में ही he had received, उसे मिले थे 30 क्रोनर। क्रोनर इज ए करेंसी इन स्वीडन, इन पेमेंट, उसके दूध की पेमेंट के रूप में उसे 30 क्रोनर मिले थे। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. अजनबी को अवश्य ही संदेह लगा होगा। Incredulous means he must have felt doubtful, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो खड़ा हुआ, खिड़की के पास गया और उसने एक लेदर का पाउच उतारा वहां से, जो वहां पर एक नेल, एक खूंटी में लटका हुआ था उसी खिड़की की फ्रेम में, एंड पिक्ड आउट 3 wrinkled 10 kroner bills, और उसमें से 3 मुड़े हुए 10 kroner के बिल्स, नोट्स निकाले। 10 kroner के 3 नोट्स निकाले। These he held up before the eyes of his guest, और ये उसने अपने मेहमान की आंखों के सामने करके दिखाए, पकड़ कर दिखाए। Nodding novelly, सिर हिलाते हुए, यह जानकर सिर हिलाते हुए, and then stuffed them back into the pouch, और फिर उनको वापस पाउच में डाल दिया, उस लेदर पाउच में डाल दिया। The next day both men got up in good season. अगले दिन दोनों आदमी
समय पे खड़े हुए, इन गुड सीजन मीन्स हेयर ऑन टाइम, समय पे खड़े हुए। द क्रॉफ्टर वॉज इन ए हरी टू मिल्क हिज काउ। क्रॉफ्टर स्मॉल फार्मर जो था वो जल्दबाजी में था, एज ही हैड टू मिल्क हिज काउ, उसे अपनी गाय का दूध निकालना था। एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड व्हेन द हेड ऑफ द हाउस हैड गोटन अप, और दूसरे आदमी ने संभवतः सोचा होगा कि उसे बिस्तर में नहीं रहना चाहिए जब उस मकान का जो मुखिया था वो खड़ा हो चुका था। They left the cottage at the same time, दोनों ही उस झोपड़ी को छोड़कर चले गए एक ही समय पे, साथ साथ। The crofter locked the door and put the key in his pocket. क्रॉफ्टर ने उसके सामने अपनी कोटेज का दरवाजा बंद किया, अपनी चाबी अपनी पॉकेट में डाली, जेब में डाली। द मैन विद द रेड टेप सेड गुड बाय एंड थैंक यू। चूहेदानी वाले आदमी ने उस आदमी को गुड बाय, अलविदा कहा, उसको धन्यवाद दिया। एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ओन वे, और इसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते चले गए। बट हाफ एन आवर लेटर द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन यहाँ पे स्टोरी में एक मोड़ आता है। देयर कम्स ए ट्विस्ट इन द स्टोरी, एंड द ट्विस्ट इज दैट बट हाफ एन आवर लेटर, लेकिन आधे घंटे बाद द रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। जो चूहेदानी बेचने वाला था वो stood again before the door. He had come back to the cottage and stood before its door. इसके दरवाजे के सामने खड़ा हुआ था। He did not try to get in. उसने कोशिश नहीं की कॉटेज के अंदर जाने की। However, he only went up to the window. हालांकि उसने अंदर जाने की कोशिश नहीं की। कहाँ गया वो? He only went up to the window. वह उस खिड़की के पास गया। He went to the window, smashed a pane stuck in his hand, and got hold of the pouch with the 30 kroner. Smashed a pane, उसने खिड़की का एक पेन तोड़ दिया। Stuck in his hand, अपना हाथ अंदर डाला, thrust in, and got hold of the pouch. And वो पाउच जो था 30 करोड़ का उसको पकड़ लिया। He took the money, उसमें से रुपए लिए, and thrust it into his own pocket, और अपनी पॉकेट में डाल लिए। Thrust means here put it into his own pocket. Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर उसने उस लेदर पाउच को बड़ी सावधानी के साथ वापस इसके उसी स्थान पे टांग दिया, हंग कर दिया, एंड वेंट अवे, और चला गया। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड विद हिज स्मार्टनेस। एज ही वॉक्ड अलोंग विद द मनी इन हिज पॉकेट, जब वो उस मनी को अपनी जेब में लेकर जा रहा था, ही फेल्ट क्वाइट प्लीज्ड, तो वह बहुत खुश हुआ अपनी स्मार्टनेस के साथ, अपनी क्लेवरनेस के साथ। कितनी क्लेवर ढंग से उसने ये सब किया था। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और उसे एहसास हुआ निश्चित रूप से that at first, पहली बात तो he dared not continue on the public highway, उसे पब्लिक हाईवे पे लगातार चलना जारी नहीं रखना चाहिए, मीन्स उसे पब्लिक हाईवे पर नहीं चलना चाहिए। बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड, लेकिन रोड से मुड़ जाना चाहिए, रोड को छोड़ देना चाहिए। इनटू द वुड्स, और जंगल के रास्ते जाना चाहिए। वुड्स मीन्स हियर फॉरेस्ट। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस caused him no difficulty. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स, पहले कुछ घंटों में उसे कोई परेशानी नहीं आई।
Later in the day it became worse. लेकिन बाद में, दिन में, बाद के समय में it became worse, यह उसके लिए बुरा बन गया, यह उसके लिए ज्यादा बुरा बन गया. For it was a big and confusing forest which he had gotten into. क्योंकि जिस फॉरेस्ट में वो आ गया था, it was a big and confusing forest, यह बहुत बड़ा और कंफ्यूज, पजल कर देने वाला जंगल था. He tried to be sure to walk in a definite direction. और उसने कोशिश की to be sure, यह सुनिश्चित करने की, to walk in a definite direction, कि वह एक निश्चित दिशा में ही आगे बढ़ेगा. But the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन जो रास्ते थे twisted, वो मुड़ जाते थे, back and forth, पीछे और आगे, so strangely, बड़े अजीब ढंग से. He walked and walked without coming to the end of the wood. वह चलता गया और उस फॉरेस्ट का कोई छोर नहीं आया, कोई अंत नहीं आया. And finally he realized that he had only been walking around the same part of the forest. And finally, और at the end he realized, आखिर में उसे realize हुआ, ये एहसास हुआ, he had only been walking around in the same part of the forest, कि वह जंगल के एक ही हिस्से में चलता जा रहा था, इधर उधर. All at once he recalled his thoughts about the world and the rat trap. और अचानक उसे याद आया, उसने याद किया क्या, अपने विचार, about the world and the rat trap, संसार के बारे में और चूहेदानी के बारे में. Now his own turn had come. अब उसकी खुद की बारी आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught the whole. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait. उसने टेम्पटेशन के द्वारा अपने आप को मूर्ख बनने दिया था. And had been caught, और अब वो फंस गया था. The whole forest with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison. पूरा का पूरा फॉरेस्ट with its trunks, अपने तनों के साथ, अपनी शाखाओं के साथ, its thickets, अपनी झाड़ियों के साथ, and fallen logs, और टूटे हुए जो तने होते हैं, लट्ठे होते हैं, उनके साथ, closed in upon him, इन सभी ने उसको बंद कर लिया था. Like an impenetrable prison, जिस तरह से कोई unbreakable जेल होती है, वो बंद कर लेती है कैदी को. From which he could never escape, जिससे वो कभी अब बच नहीं सकता था. So इसके साथ जो think as you read questions है, आपको ये questions भी attempt करने हैं. From where did the peddler get the idea of the world being a rat trap? पेडलर को ये आइडिया कहाँ से मिला कि जो संसार है ये एक रेट ट्रैप है. तो हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं इस लेसन में. यू हैव टू आंसर इट. एंड सेकंड क्वेश्चन, व्हाई वाज ही अम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, कि जो आइडिया था द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेट ट्रैप, ये इस द रेट ट्रैप सेलिस विचार से खुश था. ही वाज प्लीज्ड विद दिस आइडिया. क्यों था ये आपको बताना है. Did the peddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? क्या पेडलर एक्सपेक्ट करता था जो अतिथि सत्कार उसे मिला था क्रॉफ्टर की तरफ से? आपको बताना है कि ऑफन वो किस तरह के फिशेस, साउर फिशेस उस तरह उसको मिलते थे. Why was the crofter so talkative and friendly with the peddler? क्रॉफ्टर जो था, स्मॉल फार्मर, इतना उसने इतनी बातें की और इतना मित्रवत पेश आया पेडलर के साथ, ऐसा क्यों था? Why did he show such a behavior towards the peddler? Why did he show the 30 kroner to the peddler? उसने वो 30 kroner पेडलर को क्यों दिखाए? Did the peddler respect the confidence reposed in him by the crofter? क्या पेडलर ने जो रिस्पेक्ट किया उस कॉन्फिडेंस का जो क्रॉफ्टर जो था
उसने उस पर विश्वास किया था, उस कॉन्फिडेंस का उसने रिस्पेक्ट किया या नहीं किया? यू हैव टू आंसर दीज 6 क्वेश्चंस। अब आगे बढ़ते हैं। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो इन ग्लूम एंड डिस्पेयर, हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। दिसंबर का अंतिम समय चल रहा था, लेट इन डिसम्बर, लास्ट डेज ऑफ डिसम्बर वर गोइंग ऑन। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट, और अंधेरा छा गया था जंगल में। दिस इंक्रीज्ड द डेंजर, इससे खतरा भी बढ़ गया था। एंड इंक्रीज्ड ऑल्सो इज ग्लूम एंड डिस्पेयर, और इससे उसकी जो उदासी थी, उसकी जो निराशा थी, डिस्पेयर, होपलेसनेस, वो भी बढ़ गई थी। उसकी सैडनेस एंड होपलेसनेस बढ़ गई थी। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, आखिर में उसे कोई उस फॉरेस्ट से बाहर जाने का रास्ता दिखाई नहीं पड़ा। एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड, एंड ही फेल ऑन द ग्राउंड, और वो जमीन पर गिर गया। टायर्ड टू डेथ, बहुत ज्यादा थक गया। टायर्ड टू डेथ मीन्स हियर it not literally means deadly, means tied to death, but he was extremely tired, deadly tired, वो बहुत ही थक गया था। thinking that his last moment had come, और वो सोच रहा था कि my end has come, मेरा अंत अब आ गया है, मैं मरने जा रहा हूं। But just as he laid his head on the ground, लेकिन जैसे ही उसने he put his head on the ground, अपना सिर जमीन पे रखा, he heard a sound, he heard a sound, a noise, उसे एक आवाज सुनाई पड़ी। a hard regular thumping, ये एक hard regular thumping, या नियमित रूप से जोर जोर से थम्पिंग, मारने की, जोर जोर से किसी चीज को हिट करने की आवाज थी। देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज, और वो इसमें कोई संदेह नहीं था कि आवाज किसकी थी। ही रिकॉग्नाइज्ड, ही मेड आउट व्हाट द साउंड वाज। दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मील, ही रेज्ड हिमसेल्फ। उसने अपने आप को उठाया और बोला, दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स, ये हथौड़े के पर हार की आवाज है किसी आयरन मील से, लोहे की मील से। ही थॉट, उसने सोचा। देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय, इसका मतलब अवश्य ही आसपास लोग होंगे। He summoned all his strength, got up and staggered in the direction of the sound. He summoned, he collected all his strength, उसने अपनी सारी शक्ति बटोरी और बटोर कर खड़ा हुआ somehow, and staggered, और लड़खड़ाते हुए चलने लगा। staggered, लड़खड़ाते हुए चलने लगा। in the direction of the sound, उस ध्वनि की, उस ध्वनि की दिशा की तरफ। The Ramsjo ironworks, which are now closed down, were not so long ago. When Ramsjo ironworks, which are now closed, जो Ramsjo ironworks हैं जो अब बंद हो चुके हैं, were not so long ago a large plant. बहुत पहले की बात नहीं है कि एक बड़ा सा प्लांट हुआ करता था। With smelter, rolling meal and forge, इसमें स्मेल्टर हुआ करता था, जो और होती आयरन, और उससे जो बेस मटेरियल निकालने का यहाँ पे काम होता है, दैट इज स्मेल्टर। रोलिंग मील, मील हुआ करती थी यहाँ पे। एंड फोर्ज, और ढलाई घर, इसमें उस मेटल को, जो फर्स्ट टाइम जो मेटल ऑब्टेन की है और से, उसको हीट किया जाता था।
In the summer time, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal. समर टाइम, गर्मी के मौसम में लॉन्ग लाइंस ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस, लंबी लंबी कतारें लग जाती थी हैवीली लोडेड बार्जेस की। बार्जेस क्या होती हैं यहाँ पे? बोट्स, लॉन्ग बोट्स विद वाइड फ्लैट बॉटम, long boats with wide flat bottom to carry things in from one place to another in canals or rivers, जो नदियों में यूज की जाती हैं। उनकी लाइनें लग जाती थी। एंड स्काउज, स्काउज आर दोज फ्लैट बॉटम बोट्स जो जहाज से सामान को इधर उधर लेकर जाते हैं। मीन्स जहाज में सामान लोड करने के लिए और अनलोड करने के लिए यूज की जाते हैं कैनाल के रास्ते। तो इन दोनों तरह की नावों की, इन दोनों तरह की नावों के, भरी हुई नावों की कतारें लग जाया करती थी इस कैनाल में, विच लेड टू ए लार्ज इनलैंड लेक, जो कि एक बड़ी जो इनलैंड लेक है, जमीन के अंदर, मीन्स जमीनी भूभाग के अंदर जो झील है वहां तक जाती है ये कैनाल। एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच सिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। और विंटर के मौसम में जो रोड थे वहां पे नियर द मील, उस मील के आसपास, वर ब्लैक, वो काले पड़ जाते थे, फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट, जो कोयले की धूल होती थी उससे, विच शिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल कैरेट्स, जो बड़े चारकोल के कैरेट्स होते थे जो ट्रकों वगैरह में लोड करके ले जाए जाते थे उस मील तक, उनसे कोल डस्ट रिस कर सड़क को काला कर देती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, ये जो हमने पैरा किया है इसमें बताया गया कि पहले रैम्प जो वर्क्स में किस तरह की कंडीशन प्रिवेल करती थी। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर क्रिसमस द मास्टर स्मिथ and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. During दौरान, one of the long dark evenings, लंबी अंधेरी रातों के दौरान, अंधेरी शामों के दौरान, जस्ट बिफोर द क्रिसमस, क्रिसमस से जस्ट पहले, मास्टर ब्लैकस्मिथ और उसका जो सहायक था, जो मुख्य लोहार था, और उसका जो हेल्पर था, असिस्टेंट था, उस डार्क, उस अंधेरी फोर्ज, उस ढलाई घर में, नियर द फर्नेस, भट्टी के नजदीक, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वो इंतजार कर रहे थे फॉर द पिग आयरन। पिग आयरन मीन्स क्रूड आयरन, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्मेल्टर। स्मेल्टर के बाद जो फर्स्ट टाइम आयरन ओर से जो लोहा मिलता है उसको पिग आयरन बोलते हैं। विच हैड बीन पुट इन द फायर, जिसको आग में डाल रखा था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो तैयार होकर निहाई पर रखा जा सके। टू पुट ऑन द एनविल, एनविल होती है निहाई, जहाँ पे उसको पीटा जाता है, जो आयरन है उसको पीटा जाता है एंड गिवन सम शेप, उसको कुछ शेप दिया जाता है। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गोट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद ए लॉन्ग आयरन बार। एवरी नाउ एंड देन, बार बार, फ्रिक्वेंटली, उनमें से एक व्यक्ति खड़ा होता था टू स्टिर द ग्लोइंग मास, उस चमकते हुए भार को हिलाने के लिए, मास उस पदार्थ को, उस मटेरियल को हिलाने के लिए, विद ए लॉन्ग आयरन बार, एक लंबी लोहे की छड़ के द्वारा, रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स, और जब वो लौटता था कुछ समय बाद, ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन, तो पसीने से तरबतर हो जाता था। दो एज वॉज द कस्टम he wore nothing but his long shirt and a pair of wooden shoes. यद्यपि जैसा कि रिवाज थी
ही वोर नथिंग, उसने कुछ नहीं बल्कि एक लंबी शर्ट पहन रखी थी और उसके नीचे एक जोड़ी लकड़ी के जूते पहन रखे थे। ये उन ब्लैकस्मिथ का कस्टम था। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और हर समय वहां से कई तरह की आवाजें सुनी जा सकती थी ढलाई घर में। द बिग बेलोज ग्रोन एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। द बिग बेलोज, जो बड़ी बड़ी बेलोज, बेलोज यहाँ पे जो धोकनियाँ होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। दीज आर दोज structures through which air is given in the furnace। जो फर्नेस होती है उसमें हवा दी जाती है इसके द्वारा। दो द बिग बेलोज ग्राउंड, तो वो जोर जोर से करहाने की आवाज करती थी। एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड, और जो कोयला जलता था वो टूटने की आवाज करता था, क्रैक्ड। द फायर बॉय शॉवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, और जो फायर बॉय था, जो आग वाला लड़का था, इसको आग संभालने का काम करता था, शोवल्ड चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, वो क्या करता था, शोवेल्ड, वो पुट, एक यंत्र से पुट चारकोल इनटू द माउथ ऑफ द फर्नेस, उस भट्टी के मीन्स माउथ में, उसके माउथ में, उसकी ओपनिंग में चारकोल को मीन्स लकड़ी के कोयले को डालता था विद ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटर, तब काफी आवाज करता था। आउटसाइड रोड, तब काफी आवाज होती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, और बाहर रोड द वाटरफॉल, झरने की, जलप्रपात की आवाज आ रही थी। एंड ए शार्प नॉर्थ विंड विप द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, और जो तेज उत्तरी जो हवा थी, विप्ड द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल रूफ, जो ब्रिक टाइल रूफ थी, ईंट ईंट की टाइलों से बनी हुई जो छत थी, उसके ऊपर नॉर्थ जो विंड थी वो बारिश की बूंदों को पटक रही थी, जोर जोर से टकरा रही थी। इट वॉज प्रोबेबली एन अकाउंट ऑफ ऑल दिस नॉइज दैट द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस दैट ए मैन हैड ओपन द गेट एंड एंटर द फोर्ज। संभवतः इन सब शोर के कारण जो ब्लैक स्मिथ था, लोहार था, उसने नोटिस नहीं किया कि किसी आदमी ने उस फोर्ज का दरवाजा खोल लिया है, गेट खोल लिया है और उसके अंदर आ गया है। अनटिल ही स्टूड क्लोज अप टू द फर्नेस, जब तक कि वो आदमी उस भट्टी के समीप आकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of। निश्चित रूप से यह कोई अनयूजुअल, असाधारण चीज नहीं थी। बेचारे जो आवारा व्यक्ति होते हैं उनके लिए विदाउट एनी बेटर शेल्टर, जिनको कोई बेहतर रहने का स्थान नहीं मिलता रात गुजारने के लिए, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं इस तरह की ढलाई घर के प्रति, इस तरह के ढलाई घर में रहने के लिए बाय द ग्लो ऑफ लाइट, जो उसमें लाइट का जो चमक होती है उससे, विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, जो दिखाई पड़ती है, सूटी पेंस, जो कालिक युक्त जो पेंस हैं, शीशे हैं, उनसे छन के जो लाइट जाती है उसके प्रति वो अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी ढलाई घर की। एंड टू कम इन, और उसके अंदर आते हैं, टू वार्म देमसेल्व्स इन फ्रंट ऑफ द फायर, और आग के समय अपने आप को गर्म करने के लिए उसमें आ जाते हैं। सो टिल हेयर, यहाँ तक आपको इसको तैयार करना है, और इसके बाद हम नेक्स्ट जो पेजेस हैं, नेक्स्ट जो रेस्ट ऑफ द स्टोरी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो टेक केयर, बाय बाय।